সাতজন ছাত্ৰৰ করুণ মৃত্যুৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি আপোনাক জনাই আছো। নমস্কাৰ, এটিবাৰলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। জালুকবাৰীত দুৰ্ঘটনাত নিহত 7 ছাত্ৰৰ আত্মীয়ৰ মাজত এতিয়া একেবাৰে শোকাকুল পৰিৱেশ। GMCHলৈ আহি শোকত ভাগি পৰিছে মৃত ছাত্ৰৰ অভিভাৱক তথা আত্মীয়। অকালতে নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ-মাতৃ। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সম্পন্ন হৈছে মৃত ছাত্ৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে নিজ ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় এই ছাত্ৰকেইজনৰ নিথৰ দেহ। উল্লেখযোগ্য যে নিশা গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7জন ছাত্ৰৰ। মৃত ছাত্ৰকেইজন গুৱাহাটীৰ নিয়ৰ ডেকা আৰু সাতগাঁৱৰ অৰিন্দম ভোৱাল, মঙলদৈৰ জ্যোতিনগৰৰ কৌশিক বৰুৱা, শিৱসাগৰৰ বকতাৰ কৌশিক মোহন, মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ ৰাজ কিৰণ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ৰ নিজ মানকটাৰ ইমন বৰুৱা, নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিৰ উপাংশু শৰ্মা। ইপিনে আজি পুৱা দুৰ্ঘটনাথলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। দুৰ্ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু নিহতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক উদ্দেশ্যি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনফালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FK 9605। বাহনখন সৌভিত ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ। এই বৰ্ষৰে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল এই বাহনখন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পঞ্জীয়নভুক্ত। অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আজি এজন ছাত্ৰৰ পিতৃয়ে ভাষ্য আগবঢ়াইছে যে গাড়ীখন তেওঁলোকে ভাড়ালৈ লৈছিল বুলি তেওঁক কোৱা হৈছিল। কালি নিশা তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে কথা পাতিছিল। নিশা 9 বজাত পুত্ৰৰ সৈতে অন্তিম বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল আৰু তেতিয়াই পুত্ৰই কৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ পাছত যেহেতু মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন সমাপন হৈ গ'ল আৰু নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাছত ভোটদান কৰাৰ পাছত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াও সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু কোন পৰাজিত হ'ল কোন জয়ী হ'ল সেইখিনি ওলাই পৰিল আৰু জয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু পৰাজিত প্ৰাৰ্থীসকলে একেলগে গৈ প্ৰীতিভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই কথা পিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে এখন গাড়ী ভাড়ালৈ লৈ প্ৰীতিভোজলৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই গাড়ীখনতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। গাড়ীখনৰ অৱস্থা বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে, চুচুৰময় হৈ পৰিছে এই স্কৰ্পিঅ' এন বাহনখন। এই বাহনখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোক গৈছিল ওলাই হোষ্টেলৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত নিশা উভতি অহাৰ পৰতেই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আনফালে জালুকবাৰীৰ 7জন মেধাৱী ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এখন বাহনৰ ভিতৰত যিখন বাহনৰ ছিট কেপাচিটি 7জন, সেই বাহনখনত 10জন ছাত্ৰ গৈছিল। একেলগে এই ছাত্ৰকেইজন এখন বাহনত গৈছিল। কিয় গৈছিল আৰু গৈছিল তাকো অতি তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলোৱা হৈছিল। তীব্ৰ বেগত গাড়ীখন কিয় চলোৱা হৈছিল? সুৰাপান কৰি আছিল নেকি? যিহেতু সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বাহনখনৰ পৰা। সেই সকলো প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত জমৰি দি ধৰিছে। সমান্তৰালভাৱে হোষ্টেলৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। হোষ্টেলখনৰ চৌহদ উন্মুক্ত হৈ থাকে। যিকোনো সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। নিশা পুৱা পুৱতি নিশা যিকোনো সময়তেই ছাত্ৰ অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে হোষ্টেললৈ। হোষ্টেলৰ বাহিৰত যাব পাৰে। নিজৰ খেয়াল খুচিমতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। বাধা দিওঁতা কোনো নাই। তাত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে নহ'ল। এই সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছে যে আৱাসিক এটা অঞ্চল, সেই অঞ্চলটো যি স্থানত এই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খন আছে সেয়েহে তাত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰি। এটা গা এৰা দিয়া মনোভাৱ তেওঁ পোষণ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটি তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আছে, আমি শুনাম। প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আগবঢ়াব বিচাৰিম। जोड़ती है। साथियों, आज से 10 साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट की पॉलिसी होती थी। मोदी जी ने आके उसको बदला, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेके आए। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर, हर एक में बहुत बड़े जो परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। साथियों, अगर सिर्फ रेलवे की बात करें, 2014 से पहले अष्टलक्ष्मी के इस विराट प्रदेश में, दुर्गम क्षेत्र में, इतने सुंदर नेचुरल परिवेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए क्या मिलता था? केवल 2100 करोड़ मिलता था साल का। मोदी जी ने आके उसको डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया और इस बार
5 गुना करके 10,200 करोड़ रुपए का एलोकेशन दे रहे हैं मोदी जी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, और उसका परिणाम जमीन पे दिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में 1,618 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बनाए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में। 122 किलोमीटर लंबी तो सिर्फ टनल्स है। इतना मुश्किल काम ये कोई अगर कर सकता है तो मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प से ही नॉर्थ ईस्ट का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। साथियों, 452 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, 59 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और जो गुवाहाटी का स्टेशन है जिसपे हम सब बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो सेकंड एंट्री की तरफ जो प्रॉब्लम थी एक्सेस की, वो दूर की। उस दूर करने के कारण अब इस स्टेशन को जैसे जापान में स्टेशन होते हैं वैसा मोदी जी ने गाइड किया है, वैसा मोदी जी ने संकल्प लिया है। गुवाहाटी के स्टेशन को जैसे जापान में स्टेशन होते हैं वैसा स्टेशन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। ये साथियों, ये विजन है रेलवे के। कुल मिला के 77,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हो रहे हैं। टूरिज्म के लिए विस्टाडोम कोच, टूरिज्म के लिए भारत गौरव ट्रेन, एक तरीके से रेलवे, हाईवे, पावर सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कर रहे हैं। टेलीकॉम की अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले मात्र 20,000 टावर थे। टावर यानी बीटीएस अगर हम कहें एक एक टावर पे, तो मात्र 20,000 थे। 5 गुना बढ़ के पिछले 9 वर्षों में 1 लाख बीटीएस हो गए हैं। ये मोदी जी ने और भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी गांव 4G 5G कनेक्टिविटी से छूटा न रहे। ईच एंड एवरी विलेज शुड गेट गुड हाई क्वालिटी 4G 5G कनेक्टिविटी, और उसके लिए 11,200 गांवों में कनेक्टिविटी लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 8,600 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। तेजी से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां जहां जमीन की प्रॉब्लम थी आपने सॉल्व की टावर के लिए। साथियों, एक और जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग जो इंटरवेंशन प्रधानमंत्री जी ने किया, पोस्ट के माध्यम से डाक निर्यात केंद्र खोले। इस डाक निर्यात केंद्र से कल पोस्ट ऑफिस में रिव्यू चल रहा था, इतनी खुशी हुई जान के, गोलाघाट के पास के गांव से एक हमारे असम के क्राफ्ट्समैन आज साउथ कोरिया, कनाडा और अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पीएम साहब का विजन है कि छोटे से छोटे गांव को भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ प्रधानमंत्री जी जोड़ देते हैं। इसी भावना के साथ आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को अभी आप फ्लैग ऑफ करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय परिवहन सेवा के रूप में परिवर्तित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना भाषण प्रदान करें। मोर लगत सकलो एकेलगे कब जाते मोदी डांगरियाय पूरा दिल्लीলৈকে শুনা पाए। भारत माता के আৰু অলপ পাৰি নেকি? অলপ পাৰি, ঠিক আছে। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी डांगरिया आमार लगत एतिया भिडिओ कन्फारेन्सर যোগে आमार लगत जड़ित হৈ আছে। प्रधानमंत्री डांगरियार कारणे आमी कम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। অসমৰ মহামহিম राज्यपाल गुलाब चांद काटारिया डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, रेल विभागर सम्मानीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डांगरिया, भारत सरकाৰৰ गृह विभागर मंत्री नीतीश प्रामाणिक डांगरिया, असम सरकाৰৰ मंत्री परिमल शुक्लबैद्य डांगरिया, सांसद कुइन उजा डांगरियानी, कामाख्या प्रसाद तासा डांगरिया, पवित्र मार्घेरिटा डांगरिया, आमार মাজত उपस्थित सुधीबृंद
আজি আমাৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা যে নতুন দিল্লীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত ৰেল আমাৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিবৰ বাবে অলপ সময় আগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন চাব গৈছিলোঁ বন্দে ভাৰতত উঠিলে এৰোপ্লেনতে উঠিছো নে ক'ত উঠিছো গম নাপায় ইমান ধুনীয়া ট্ৰেইন মই মনৰ পৰা অত্যন্ত আনন্দিত যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ টেকনলজি দি আজি এনেকুৱা বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উদ্ভাৱন হৈছে অলপ আগতে ৰেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈ আছিলে যে এই বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল টেকনলজি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আমাৰ ভাৰতৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত এই বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এই ট্ৰেইন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিদেশৰ আন যিকোনো ট্ৰেইন ব্যৱস্থাতকৈ অধিক উন্নত তাক আজি আমি অনুভৱ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা ডাঙৰ বাণী দিছিলে যে উত্তৰ পূৰ্বক যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে we have to transform northeast through transformation through transportation প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই নিৰ্দেশক অনুসৰণ কৰি আজি ভাৰত চৰকাৰে ৰেল নদী আৰু পথ যোগাযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আজি আমি ইয়াতে সকলোৱে লগ হৈ আমি অনুভৱ কৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় ৭০,০০০ কোটি টকা উত্তৰ পূৰ্বৰ উন্নয়নৰ অকল ৰেল খণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা কেইটামান দিনত 430 কিলোমিটাৰ নতুন ৰেল লাইন সংযোজিত হৈছে 894 কিলোমিটাৰ মিটাৰ গজৰ পৰা ব্ৰডগজ হৈছে 429 কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন ডাবলিং হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ মাজত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে মাননীয় ৰেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি ভৱিষ্যত দৰ্শন সেই ভৱিষ্যত দৰ্শনৰ পথত এতিয়া আমাৰ শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰেল দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ কলিয়া ভুমুৰাৰ লগতো দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এনেবোৰ কামে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বক এক গৌৰৱৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই ১,৬৭৭ কোটি টকাৰে শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলং ৩,৫১২ কোটি টকা ব্যয়েৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত তেজপুৰ আৰু শিলঘাটক 25 কিলোমিটাৰ জোৰা দলঙেৰে দলং আৰু ব্ৰডগজ লাইনেৰে সংযোজন কৰাৰ দৰে ডাঙৰ পৰিকল্পনা আজি অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আৰম্ভ হৈছে যোৱা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বক প্ৰথমখন এইমছ উপহাৰ দিছিলে কেইদিনমান আগতে অসমত নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰো কাম আৰম্ভ হৈছে মইতো দেখি আচৰিত হওঁ যে প্ৰত্যেক 15 দিনৰ মূৰে মূৰে ভাৰত চৰকাৰে অসমলৈ এটা ভাল খবৰ পঠিয়ায় আৰু তাক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো এদিন অসমে বিচাৰিব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি এইমছ আমি বিচাৰিম সেই সাহসো আমাৰ নাছিলে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকে পিতৃয়ে সন্তানৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप 14 अप्रैल असम में आए थे असम को एम्स दिए आपने फिर थोड़ी दिन पहले आपका निर्देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी
काम शुरू हो गया है। आज आप हमें वंदे भारत एक्सप्रेस दे रहा है और अश्विनी वैष्णव जी हमें ये भी बता रहा था कि प्राय 70,000 करोड़ रुपया लागत से उत्तर पूर्व और असम का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम हो रहा है। कृतज्ञ उत्तर पूर्वे सदाय प्रधानमंत्री डांगरियाक এই উন্নয়নৰ বাবে कृतज्ञ जनाब। हम पूरा कृतज्ञ उत्तर पूर्व हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार रहूंगा। मोदी जी को हम हमेशा स्मरण करूंगा कि स्वाधीनता का बाद अब हमें जो विकास दे रहा है वो विकास का कल्पना भी आसामवासी नहीं किया था, उत्तर पूर्व ने नहीं किया था। आपने वही विकास आज हमें दे रहा है। हम इसी बात से आसाम वासियों का ओर से, उत्तर पूर्व वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया तेखेतर भाषणर बारे आमी धन्यवाद जनाइछु। रेलवे वास्तव में हमारी जीवन रेखा है जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती आ रही है और अब आज के इस अवसर के उपलब्धियों की दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी। नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन और युवा प्रतिभा भारत की अमूल्य धरोहर है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सामर्थ्य और इस क्षेत्र के तेज विकास से देश की तरक्की को लगातार बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रेल का भूतपूर्व विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में रेल के बजट में 260% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। आजादी के बाद लंबे समय तक उपेक्षित इलाकों में भी आज रेल सेवा पहुंची है और लोगों का जीवन सुगम बना रही है। असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी सहित सर्वस्पर्शी विकास पर विशेष फोकस है। दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। असम तथा पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दे रहे हैं और साथ ही कई रेल परियोजनाओं को देश को समर्पित कर रहे हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरा कर देगी, यानी औसत यात्रा समय में 1.5 घंटे की कमी आएगी। रोटेटिंग सीट, टच फ्री बायो वैक्यूम शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित दरवाजे, दिव्यांगजन के अनुकूल शौचालय और कवच तकनीक जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ के यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा का अनुभव देगी। वंदे भारत से पूर्वोत्तर के विकास में तेजी आएगी। काजीरंगा, कोबितोरा, मानस, हाफलंग, शिलांग आदि में पर्यटकों की यात्रा सहज होगी, जिससे पर्यटन और सहायक क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। आज गुवाहाटी और चापरमुख के बीच 238 ट्रैक किलोमीटर और असम के न्यू बंगाईगांव दुधनई होते हुए मेघालय के मेंदी पथार के बीच 199 ट्रैक किलोमीटर खंडों के बिजलीकरण को
राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल बिजलीकरण एक अहम कदम है। इससे रेल परिचालन की लागत में काफी कमी आएगी। लामडिंग में एक अत्याधुनिक मशीनरी से लैस डेमू एवं मेमू शेड का निर्माण भी किया गया है। इस नवनिर्मित शेड से पहली डेमू रैक आज मरम्मत के बाद यात्री सेवा हेतु निकाली जा रही है। वंदे भारत सहित इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा और नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का गेटवे बनकर उभरेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे पूर्वोत्तर में विद्युतीकृत रेलखंडों न्यू बांगागांव, दुधनोई, मेंदीपथार एवं गुवाहाटी सपरमुख का देश को समर्पित करें एवं लामडिंग में नवनिर्मित डेमो मेमो शेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाकर उद्घाटन करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार। असम के गवर्नर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य अश्विनी वैष्णव जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, निशित प्रामाणिक जी, जॉन बारला जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए असम, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। इससे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथियों को सुविधा होगी और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस
मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। भाइयों और बहनों, इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीवन आसान बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोजगार के अवसर बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तेज विकास का आधार है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे हर वंचित को सशक्त करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए है, समान रूप से हैं, बिना भेदभाव के हैं। और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के इस काम का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत है। अपने अतीत की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम हुआ था। ऐसे लोगों की सच्चाई नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मूल सुविधाओं के लिए भी दशकों तक इंतजार करवाया। इस अक्षम्य अपराध का बहुत बड़ा नुकसान नॉर्थ ईस्ट ने उठाया है। जो हजारों गांव
करोड़ों परिवार 9 साल पहले तक बिजली से वंचित थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या नॉर्थ ईस्ट के परिवारों की थी। टेलीफोन, मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हुए बड़ी आबादी नॉर्थ ईस्ट की ही थी। अच्छे रेल, रोड, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का अभाव भी सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में था। भाइयों और बहनों, जब सेवा भाव से काम होता है तो कैसे बदलाव आता है, इसका साक्षी नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी है। मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूं, यह उसका भी प्रमाण है। आप कल्पना कीजिए, देश में 150 वर्ष से भी पहले पहली रेल मुंबई महानगर से चली थी। उसके 3 दशक के बाद ही असम में भी पहली रेल चल चुकी थी। गुलामी के उस कालखंड में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर क्षेत्र को रेल से जोड़ा गया था। हालांकि तब जो नियत थी वो जनहित के लिए नहीं थी। उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था? इस पूरे भूभाग के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकृतिक संपदा को लूटना। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी। रेलवे का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम 2024 के बाद हमें करना पड़ा। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने नॉर्थ ईस्ट के जनजीवन की संवेदना और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में आया यही बदलाव बीते 9 वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे प्रखर है, जिसे नॉर्थ ईस्ट से विशेष रूप से अनुभव किया है। पिछले 9 वर्षों में पहले की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विकास के लिए बजट भी कई गुना बढ़ाया गया है। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे का बजट औसत बजट करीब 2,500 करोड़ रुपए का होता था। 2,500 करोड़ रुपया, 2,500। इस बार नॉर्थ ईस्ट का रेल बजट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। इस समय मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोड़ने का काम भी तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने वाली हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बीजेपी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, आज जिस स्केल के साथ, जिस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले 3 गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले
9 गुना तेजी से रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में ही नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क का बिजलीकरण शुरू हुआ और अब 100% लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, ऐसी ही स्पीड और स्केल के कारण आज नॉर्थ ईस्ट के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़ रहे हैं। नागालैंड को 100 साल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन अब मिला है। जहां कभी नैरो गेज पर धीमी रेल चलती थी, वहां अब सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलने लगी हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के विस्टा डोम कोच भी नया आकर्षण बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। आप देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर टी स्टॉल खोला गया है। ये उन साथियों को सम्मान का जीवन देने का प्रयास है जिनकी समाज से बेहतर बर्ताव की अपेक्षा है। इसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल्स बनाए गए हैं। ये वोकल फॉर लोकल को बल दे रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगर, कलाकार, शिल्पकार, ऐसे साथियों को नया बाजार मिला है। नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। संवेदनशीलता और गति के इसी संगम से ही प्रगति पथ पर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता सशक्त होगा। एक बार फिर आप सभी को वंदे भारत और दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।